Good morning, class 11. This is your subject accountancy, chapter number 9, journal, lecture number 7. Beta, in our last lecture, we have solved the questions till 6. In this lecture, we shall solve the question of journal entries, that is question number 7. So let's start. See, here is the question. Prepare a journal of the following transaction. 2020 Jan 6. Beta, this question is given in your book on page number 9.67. Okay, you can see this question from there also, because I have solved all the entries one by one, but question is here only. Fine. So Jan 6, sold goods to Muskan of the list price of 2 lakh at trade discount of 20%. Jan 8, Muskan returned goods of the list price of 5,000. Jan 15, received from Muskan the full payment under a cash discount of 4%. So let's see first entry first. Jan 6, sold goods to Muskan of the list price of 2 lakh at trade discount 20%. 2 लाख का 20% कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए. 2 लाख का 20% होगा आपका 40,000. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट 2020 Jan 6. First of all date, then particular, then ledger folio, then amount debited and amount credited. Entry will be Muskan's account debited to sales. जो हम सेल की एंट्री करते हैं, हम शुरू से करते आ रहे हैं. बट 1,60,000 कहाँ से आया हमारा? 2 लाख का 20% हमने निकाला, वो आया आपका 40,000. 2 लाख में से 40,000 माइनस कीजिए, वो आएगा आपका 1,60,000. फाइन. तो एंट्री विल बी विद रुपीज 1,60,000. अब देखिए बेटा, मुस्कान ने रिटर्न कर दिए गुड्स कितने, 5,000 की. जनवरी 8 की एंट्री है, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5,000. तो हमने सेल की एंट्री की थी, मुस्कान अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, इससे ऑपोजिट हो जाएगी. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मुस्कान अकाउंट. लेकिन अमाउंट क्या लिखेंगे? आई टोल्ड यू व्हेनेवर देयर इज लिस्ट प्राइस अगेन एंड अगेन. आपने लिस्ट प्राइस पे खरीदा है, ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो जब आपने सामान वापस किया तो भी ट्रेड डिस्काउंट लगा के ही, माइनस करके ही वापस करेंगे. तो 4,000 आएगा आपका. आपके क्वेश्चन में गिवन है 5,000 रुपीज. सो यू जस्ट कैलकुलेट 5,000 का 20%. हाउ मच? 1,000. 5,000 माइनस 1,000, दैट रुपीज 4,000. तो एंट्री विल बी विद रुपीज 4,000. फाइन. अंडरस्टूड बेटा? नाउ रिटर्न्ड गुड्स बाय मुस्कान आफ्टर 20% ट्रेड डिस्काउंट. ये आपकी नरेशन हो गई. फाइन बेटा. लेट्स सी नेक्स्ट एंट्री. Next entry is received from Muskan the full payment under a cash discount of 4%. मुस्कान से हमें फुल पेमेंट हो गई. मुस्कान ने हमें कितने पैसे देने थे? फर्स्ट एंट्री में अमाउंट थी 1,60,000. मुस्कान ने 1,60,000 के गुड्स खरीद, हमने बेचे, मुस्कान को उसने खरीदे. फाइन. जिसमें से 4,000 का सामान उसने वापस कर दिया. तो 1,60,000 माइनस 4,000 कितना हुआ? 1,56,000 मुस्कान ने हमें देने हैं. फाइन. तो 1,56,000 से टू मुस्कान अकाउंट हमें देने हैं. हमारे पास क्या आएगा? बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश विल बी डेबिटेड.
और डिस्काउंट अलाउ, हमने उसे डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड, फाइन, 4%। तो 1,56,000 का 4% कैलकुलेट कीजिए, दिस विल बी 6,240, जो क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड। तो क्वेश्चन में गिवन है, देखिए, रिसीव्ड फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। 1,56,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे, आपका आएगा 6,240, दैट विल बी आवर डिस्काउंट अलाउड। नाउ वी विल डिडक्ट 6,240 rupees from 1,56,000, that will be 1,49,760। ये हमें कैश मिला, that's why cash account will be debited with this amount, discount allowed account will be debited to Muskan's account. Understood this entry? If you can't understand in one, you can see it again and again, fine, watch it again and again, and still if you have a doubt you can call me or WhatsApp me. So now the narration is received full payment or full settlement cash from Muskan. Now beta total will be with all the entries January 6, January 8 and January 15. Total will be 3,20,000, 3,20,000. Understood this entry? So let's start next question. Next question is, prepare a journal of the following transactions of Raja Ram. First of all, you have to read all the transactions. Fine. This question is also given in your book on page number 9.67. Let's see first entry first. March 3rd, bought goods for cash of the list price of 80,000 at 10% trade discount, and this is beta 2.5% cash discount. Fine. So let's start. Journal account of Raja Ram. First of all, date 2017, particulars, debit column, then ledger folio, amount debited, amount credited, etc. Now see, under date we will write March 3. Under particulars we will write, see, purchased goods for cash at the list price of 80,000. कितना डिस्काउंट है? 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 80,000 का 10% कैलकुलेट कीजिए, आपका आएगा 8,000। नाउ 80,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, इट विल बी 72,000। एंट्री विल बी विद रुपीज 72,000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फाइन। नाउ परचेजेस में तो वी हैव ऑलरेडी डन 72,000 to cash account to discount received. How much amount will be there under discount received? 72,000 का हम 2.5% निकालेंगे, वो आएगा आपका 1800. 1800 we will write in front of discount received account. 72,000 में से 1800 माइनस करेंगे, जो आएगा वो आपको मिला कैश, तो टू कैश अकाउंट, उसके सामने लिखेंगे 70,200. Understood this question, this entry? बेटा 80,000 में से 80,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट जो गिवन है क्वेश्चन में माइनस करेंगे, वो आएगा आपका 8,000. 80,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, 72,000 वी विल राइट इन फ्रंट ऑफ परचेजेस अकाउंट.
72,000 का 2.5% हम कैलकुलेट करेंगे, वो आपका आएगा 1800, वो आएगा आपका डिस्काउंट रिसीव। 1800 को 72,000 में से माइनस करेंगे, वो आएगा आपका 70,200, जो आपको कैश मिला है वो आएगा आपका कैश अकाउंट में। आपने कैश पे किया है बिकॉज आपने परचेजेस की थी राजाराम से, है ना। कैश पे किया मतलब कैश बिजनेस में से चला गया तो कैश विल बी क्रेडिटेड। तो क्रेडिट कैश होगा आपका 70,200। फाइन बेटा। नाउ सी March 5th सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट द लिस्ट प्राइस। बेटा सेम वैसी ही एंट्री है, उसमें परचेज किया था, इसमें सेल किया है। सेल किया है तो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में कितना आएगा, 1 लाख का 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। 1 लाख में से 15,000 माइनस करेंगे, आपका आएगा 85,000। तो सेल्स अकाउंट में 85,000 लिखेंगे। अब कैश डिस्काउंट कितना मिला, 3%। 85,000 का 3% निकालिए, वो आएगा आपका 2,550 रुपीज। That we will write under discount allowed column. Fine. And how much cash we have received? 85,000 में से 2,550 माइनस कीजिए, जो भी अमाउंट आएगा वो होगा आपका 82,450 रुपीज, वो आपको मिला है कैश, तो वो कैश अकाउंट में आएगा। अंडरस्टूड दिस एंट्री? And narration will be sold goods for cash and allowed cash discount. फाइन बेटा, सेम फर्स्ट की तरह है ये भी एंट्री, बार बार प्रैक्टिस करके देखिए। फाइन, प्रैक्टिस अ लॉट सो दैट यू कैन बी परफेक्ट। नाउ सी March 6 sold goods to Nagpal at the list price of 50,000 at a 20% trade discount. 50,000 का 20% will be 10,000। 50,000 माइनस 10,000, 40,000 से आपकी एंट्री हो जाएगी। सो हियर नागपाल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू नागपाल। फाइन। March 8 नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। नागपाल ने 1/4 गुड्स वापस कर दिए। 1/4 40,000 का 1/4 we will calculate. Understood? We are doing the same na in trade discount whenever it is on list price, so we will have to calculate like this: 40,000 into 1/4, that will be 10,000, so entry will be with rupees 10,000. सेल्स की एंट्री हमने क्या की थी, नागपाल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न की एंट्री उससे अपोजिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड with rupees 10,000 to Nagpal's account. Understood beta? Goods returned by Nagpal. Fine. See next entry. March 10. Nagpal settled account by paying cash under a discount of 5%. Beta, Nagpal has we sold goods to Nagpal or Nagpal purchased goods from us for rupees 40,000. नागपाल ने हमसे 40,000 का सामान खरीदा, उसने 10,000 का सामान वापस कर दिया, तो हमें उससे कितने पैसे लेने हैं, 30,000 ना। लेकिन इन्होंने एंट्री में बोला है कि नागपाल का अकाउंट सेटल कर दिया अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट देकर। तो 30,000 का 5% 1,500, दैट विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कैश कितना मिला, कैश बिजनेस में आया क्योंकि नागपाल ने कैश पे किया है, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज 28,500। कैसे आई ये अमाउंट, 30,000 में से 1,500 हमने माइनस किए हैं।
Fine. So final entry will be cash account debited, discount allowed account debited to sales account. Cash account 28,500, discount allowed 1,500, sales account 30,000. And the narration will be received full settlement cash. टोटल अमाउंट, टोटल कॉलम में लिखेंगे 2,37,000, 2,37,000. फाइन बेटा. So you have to do both the question along with the illustration given in your book on page number 9.18 and 9.19. Fine, this is your homework. You have to solve this question and practice the illustration along with it that are similar to the questions. Same illustration questions की तरह ही हैं. So you have to solve it by your own. Fine. Illustration you have to do practice in your rough notebook, and these questions you have to do in your fair notebook. Fine beta.